Vincent William van Gogh, known as a painter of passion and despair, one of the finest painters of post Impressionism. He worked in strokes and in bright colors and created multicolored portraits and plein air paintings. He was known for depicting his burning passions and desires and his anguish and pain. दर्द और वेदना के कलाकार के नाम से जाने जाते हैं विंसेंट वैन गॉग। आइए देखते हैं उनकी कला यात्रा। One of the most important artists of post Impressionism was Vincent William van Gogh. His lives and works were no different. जिस तरह की उनकी ज़िंदगी थी उसी तरह की कलाकृतियाँ हम नज़र आते हैं। वही दर्द भरी ज़िंदगी और वही दर्द और वेदना उनके चित्रों में साक्षात होती हैं। They reflected his feelings and emotions of sadness, rejection, despair, his concern for poor, downtrodden people. तो उनके जो चित्र हैं, जो उनकी विषय वस्तु है, उसमें वही दर्द और वेदना और भावों की अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं, जो कि दीनहीन गरीब मजदूरों के चित्र बना के उन्होंने व्यक्त करे, या उनकी दर्द या रिजेक्शन। एक उनका व्यक्ति चित्र है जिसमें उन्होंने अपना कान काटा हुआ है और उस पर पट्टी बंधी हुई है। इट इज़ अ बैंडेज्ड ईयर पोर्ट्रेट विच डिपिक्ट्स हिज मेंटल डिप्रेशन एंड हिज मेंटल एंग्विश। इसलिए हम कह सकते हैं उनके चित्र और उनका जीवन भिन्न नहीं है। He also painted nature, in which he depicted gardens, trees, wheat fields, cornfields, riversides, bridges, restaurants and portraits. उन्होंने प्रकृति का भी बहुत सुंदर अंकन किया है, जिसमें उन्होंने बगीचे, पेड़, पौधे, खेत, खलियान, नदी आदि को बहुत सुंदर रूप में चित्रित किया और व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं, रेस्टोरेंट्स के दृश्य भी बनाए हैं, उसके अंतरम दृश्य भी बनाए हैं, तो बाह्य भाग को भी अंकित किया है। उनके जितने भी चित्र हैं, चाहे वो प्रकृति चित्र हों या दीनहीन गरीब मजदूरों के चित्र हों या किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े के चित्र हों या पोर्ट्रेट्स हों, उनमें बड़ी चमकीले रंगों का प्रयोग किया है और मोटे मोटे स्ट्रोक्स में उन्होंने अंकित किया है। सो मोस्ट ऑफ हिज पेंटिंग्स, वेदर दे आर of nature or of portraits or of restaurants or of downtrodden people, are made in bold strokes, and mostly his paintings, especially of nature and portraits and restaurants, are in bright multicolors. His works depict the rough beauty and emotional honesty, bold strokes in bold, bright colors. He lived a life of a loner and suffered mental illness and died at the age of 37 from a gunshot, a self-inflicted wound. इसके पीछे भी एक कहानी है जिसमें उन्होंने आजीवन प्यार के लिए भटकते रहे, लोगों से प्रेम करना चाहते थे, उनके अंदर बहुत प्रेम था, लेकिन लोगों ने उनका प्रेम एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपनाया नहीं और हमेशा उनको मना ना ही मिला। जो उन्होंने पहली बार प्यार किया तब भी उनको ना कर दिया गया। जितनी बार किसी गरीब की मदद करनी चाहिए तो उन्होंने उनसे वो मदद नहीं ली, उससे इनको बहुत धक्का पहुंचा। एक ही प्रेम या होप जिसे हम कहते हैं, वो वैन गॉग के जीवन में जो थी वो उनका भाई थियो था। थियो वॉज द ओनली होप और लव इन हिज लाइफ। ही वॉज द वन हु हेल्ड हिम टुगेदर एंड इनकरेज हिम टू ड्रॉ एंड पेंट। और वो अपने मानसिक वेदना से इतने त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने 37 ईयर्स की एज में अपने अब आत्महत्या कर ली और अपने आप को गोली से मार लिया। He killed himself by a self-inflicted wound, committed suicide due to mental depression. He believed that miseries of man will never end or never ends. Journey and works of Vincent Willem van Gogh. He was a painter of Dutch origin, born in Zundert, Netherlands in 1853. Right from his childhood, he had a passion for painting, but took up painting very late in life. He initially worked as salesperson at Gopal's shop and sold paintings at Hague. And since he was a very honest person and a very humble and genuine person, he was soon promoted and he was transferred to London, which marked a turning point in his life. He sold lots of painting. He met painters and auction people who would come to his shop to buy paintings, and he was enjoying his work. But during his stay, he got emotionally attached to a girl who was his landlord's daughter, and he fell in love with that girl. And he proposed to her, but that girl rejected. उन्होंने उसको अपना प्रेम का प्रस्ताव रखा, उस लड़की ने मना कर दिया, और ये जो धक्का उनको पहुंचा उसने पूरी उनकी ज़िंदगी को
उलट पलट कर दिया. दैट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. उनको इतना धक्का लगा कि उसने आगे बढ़कर उनसे दोस्ती करनी चाहिए उस लड़की ने, और जब उन्होंने प्रेम का हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उस लड़की ने मना कर दिया. ही सफर्ड फ्रॉम रिजेक्शन विच हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिम. फेलियर्स इन लाइफ कंटिन्यूड. और यहाँ से उनकी रिजेक्शन, डिजेक्शन और मना करने और ना की ज़िंदगी शुरू हो जाती है, और उन्होंने खूब दर्द झेला, तकलीफ़ें झेली, मानसिक अवसाद से ग्रसित होने लग गए. ही ऑल्सो वर्कड एज अ फ्रेंच टीचर एंड देन एज अ प्रीस्ट एट मेथोडिस्ट स्कूल. जब वो फ्रेंच टीचर एक स्कूल में काम करते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी काम था कि बच्चों से फ़ीस कलेक्ट करने का. तो जो दीन गरीब बच्चे थे उनसे वो फ़ीस माफ़ कर देते थे, इस वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया. तो उन्होंने बहुत सारे कार्य करे, लेकिन उनका जो संवेदनशील हृदय था वो कभी उन्होंने उस व्यक्तित्व को कभी ख़त्म नहीं किया. ही ऑलवेज फेल्ट pain and sympathy for humanity, which he never left. Finally, he went to coal mining district Voronezh as a missionary at Belgium. उन्होंने वहाँ पे धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे, और लेकिन वहाँ पे उसके दर्द वेदना और लोगों की तकलीफ देख के उन्होंने वहाँ चित्र बनाने शुरू करे. He drew several paintings of sad, poor and hard life of local people, and this proved to be a very important part in his life and started enjoying. He wrote to his brother that I love painting and I don't want to give up painting. मैं चित्र ही बनाना चाहता हूँ, इसमें मुझे बहुत खुशी संतोष मिलता है. He finally took up art on the suggestion of his brother Theo, as he found in art a means to express his emotions and concerns for humanity. और यहाँ से उनकी कला यात्रा शुरू होती है. उन्होंने कला को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और अपनी कलाकृतियाँ बनाई. और क्योंकि दर्द था उनके जीवन में, और एक दर्द की बात मैं यह बताना चाहती हूँ कि उनके जीवन काल में शायद एक दो ही पेंटिंग बिकी, और वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत किया, दुख में जीवन व्यतीत किया. लेकिन उनके मरणोपरांत बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया गया, लाखों करोड़ों डॉलर्स में अब उनकी पेंटिंग बिकती है, और वो बहुत फेमस कलाकार बन गए. उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, लविंग विंसेंट. द नेम ऑफ द मूवी इज लविंग विंसेंट. ही बिकेम वेरी फेमस आफ्टर हिज डेथ, बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही हार्डली सोल्ड 1 or 2 पेंटिंग्स एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ अ लोनर एंड अ पुअर मैन. एंड ये है उनकी कहानी, और यही इस तरह के ही चित्र और वेदना उनके कलाकृतियों में हमें नजर आती है. Now we come to the works of Vincent van Gogh. His works are broadly divided into 3 periods. Major 3 भागों में इसका विभाजन किया. 3 अध्याय हम कह सकते हैं, या 3 स्तर कह सकते हैं, 3 समय कालखंड भी कह सकते हैं जिसमें हम इसको विभाजित करते हैं. पहला पीरियड है ह्यूमैनिस्ट अप्रोच एंड डच पीरियड. मानव संवेदना का समय और डच काल जो 1880 से 1885 तक जाता है. उसे एंड द स्टाइल दैट अकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज रोमांटिक रियलिज्म. रोमांसवादी यथार्थवाद शैली में उन्होंने अंकन किया है, उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति है और यथार्थवादी अंकन है. इन दिस फेज ही मोस्टली डिपिक्टेड इमोशंस एंड फीलिंग्स इन अ रियलिस्टिक मैनर. सेकेंड पीरियड इज पेरिस पीरियड एंड वर्क्स एट आल. पेरिस का समय और आल्स में उन्होंने जो भी चित्र बनाए थे वो 1886 से मई 1889 तक का समय है. इट डिपिक्ट्स द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, और उसमें जो शैली नज़र आती है वो प्रभाववादी शैली है. द स्टाइल विच वी सी इज इम्प्रेशनिज्म बिकॉज ही डिपिक्टेड द ब्राइट हैप्पी स्टाइल एंड फन एंड फ्रॉलिक. उन्होंने खुशियों के पल प्रभाववादी शैली में चित्रित करे हैं. यहाँ पे रंग सुनहरे, ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स आर यूज, चटकीले रंगों का प्रयोग किया. और डच पीरियड में उन्होंने गहरे डच स्टाइल में भूरे गहरे काले रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया. ही मोस्टली यूज डार्क कलर्स इन डच पीरियड. देन द थर्ड टाइम पीरियड इज टाइम स्पेंड एट सेंट रेमीज हॉस्पिटल, जो इनका अंतिम समय था, जो उन्होंने उस मेंटल हॉस्पिटल में बिताया, मानसिक चिकित्सालय में उन्होंने बिताया था 1889 to 1890. चिकित्सालय में बिताया और एक घर में रहा करते थे अंत में. तो ये वो समय है. द स्टाइल गॉट मेच्योर्ड एंड वॉज अ पीरियड ऑफ फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ हिज आर्ट. इसे एक्सप्रेशनिज्म भी कहा जाता है. एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स बनाई हैं उन्होंने, और ये सबसे अच्छा समय है. इसमें उनका शैली परिपक्व हो गई और उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी करी. इन हिज अर्ली वर्क्स वी फाइंड ह्यूमैनिस्ट अप्रोच. ही मेड मोस्टली पेंटिंग्स ऑफ माइन एंड फार्मर्स एंड लेबरर्स. तो संवेदना का समय है. उस समय उन्होंने जो श्रमिक थे उनका चित्रण किया है, दीनहीन गरीब
लोग उस गांव में जो रहते थे उनका अंकन किया, पुअर पीपल who lived in the villages, streets, weavers in their cottages, still lives भी बनाई हैं उन्होंने, वस्तु समूह का अंकन भी किया है. Medium he painted in crayon, charcoal and also in oil. He used dark brown colors and black predominantly due to his Dutch influence. क्योंकि वो Dutch थे, he said I am a Dutch man, Vincent van Gogh. तो उन्होंने गहरे काले रंगों में काफ़ी चित्र बनाए हैं. He made a line drawing of a helpless woman during this period. सीए अ prostitute, एक वैश्या थी, उसके प्रेम में भी पड़ गए थे. वो बहुत गरीब थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसकी मदद करना चाहते थे. और उस पेंटिंग का नाम उन्होंने सौरो दिया था. एंड अंडर दैट पेंटिंग हैड रिटन दैट दिस इज़ द वे अ लोनली डिजेक्टेड वुमन लुक्स. यहाँ पे भी एक उनको धक्का पहुँचा था जब उस औरत से मिले. उनके लिए तो वो औरत थी, एक वैश्या नहीं थी. उसकी दर्द से, उसके साथ एक बच्चा था, गरीब थी, वो उससे शादी करना चाहते थे और सच्ची में करना चाहते थे. लेकिन उस औरत इतनी घबरा गई कि कोई ऐसा इंसान भी है इस दुनिया में जो कि एक ऐसी औरत को अपनाना चाहता है, उसको छोड़ के भाग गई. यहाँ पे भी उनको बहुत धक्का लगा और वह फिर मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गए. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काल है जिस समय उन्होंने ये चित्र बनाए हैं. और आगे हम देखेंगे ह्यूमैनिस्ट पीरियड का महत्वपूर्ण चित्र. विल सी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ पेंटिंग ऑफ ह्यूमैनिस्ट अप्रोच स्टाइल इज पोटैटो ईटर्स दैट विल डिस्कस. आलू खाते श्रमिक, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली स्लाइड में. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग विच आई एम शोइंग इट टू यू, पोटैटो ईटर्स. यहाँ पे ये डच काल का महत्वपूर्ण चित्र है जिसमें आलू खा रहे हैं वो श्रमिक. उनका रात का खाना है कि सिर्फ आलू ही खाने को मिलता था. इतने गरीब लोग थे कि वो केवल दे यूज टू ईट ओनली पोटैटोज. यू कैन सी the expressions on their faces, the roughness, the ruggedness on their faces, the light, the lamp light falls on their faces. They're drinking tea, coffee, and they are poorly dressed. They're थकान उनके चेहरे पे नजर आती. We find tension and struggle and tiredness, a fatigue on their faces. उनके हाथों को अगर आप देखें तो उसमें भी वो रफनेस, रगडनेस नजर आएगी, वो खुरदरापन नजर आएगा जो कि काम करके श्रमिक के हाथ हो जाते हैं. ये इस पूरे चित्र में ऐसा लगता है कि जैसे दर्द की कहानी बयान कर रहे हों. His most representative painting of Dutch period is Potato Eaters, laborers eating a meager potato meal. He has used dark earthen colors of tones, used mostly browns and blacks and greys, depicted rough features of the peasants. उनके खुरदरेपन, उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनके श्रम को उन्होंने उनके भाव भंगिमाओं में दर्शाया. उनकी बड़ी बड़ी आँखें, टेढ़ी मेढ़ी नाक, मोटे होंठ, झुर्रियों भरा चेहरा, झुर्रियों वाला हाथ, हड्डियाँ नज़र आ रही उनके हाथों में. द रिंकल्स, द exaggerated features on their face and the light falling from the lamp exaggerates their trouble and their struggle. तो जो ऊपर से रोशनी आ रही है लैम्प से, वो उनकी दर्द, उनकी वेदना, उनकी तकलीफ़ों को और नाटकीय रूप में दर्शा रही है. प्रभावशाली अंकन है ये. All in all, this painting conveys their hard life struggle. He has effectively used effect of light through a lamp hanging from the ceiling. इस चित्र के लिए वैन गॉग ने यह भी कहा था कि अगर इसमें गोबर की और सीलन की और पसीने की बदबू आए तो मैं सफल हो जाऊंगा इस चित्र के अंकन में. He had once commented about this painting that this painting should smell of cow dung and sweat of the people. Then I have successfully depicted what I wanted to show in this painting. तो ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, किस तरह से एक कलाकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है. आपके लिए भी प्रेरणादायी रहेगा कि आप देखें कि कैसे कलाकृति के माध्यम से आप भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, संघर्ष को दर्शा सकते हैं, किस तरह से स्ट्रोक्स लगा के, किस तरह से फीचर्स बना के आप लोगों की आँखों को, नाक को किस तरह से आप उभारें तो वो दर्द वेदना नज़र आएगी एक चित्र में. धन्यवाद. We come to the end of first video Vincent William van Gogh. To view and listen to his details and his paintings, please watch my second video, part 2 of Vincent William van Gogh. Thank you.